Well, hello, namaskar. You're watching DD Sports. I'm Frank Rausen Pereira. This is Cricket Live. What an exciting day of cricket we witnessed on day one of the fourth test between India and England. 11 wickets fell on day one. We'll talk about that, and we'll also talk about what to look forward to in day two as the Indian batsmen take the field and try to surpass the 200-run score that England scored in the first innings. To talk about all of that and much more, I have with me on the program today former Indian cricketer and World Cup winner, Madan Lal. Thank you. Thank you. And also with us today, we have a cartoonist who will take us through the exciting moments of day one and also what to expect in day two as well. And we'll be joined by sports expert Jayant Lakheda as well to talk about the cricket match between India and England. So, Madan Lalji, let me start with you first. Yeah, sure. How would you look back at day one of the fourth test? Day one, I think India has done very well because they got England out for 205. And I think there will be a lot of problem for England today. Hopefully, if India bats well. But I think जो भी हुआ है, I think England has to blame themselves. क्योंकि देखिए, the wicket was good. They won the toss. उन्होंने run नहीं बनाए इस wicket पे, and they made the same mistake which they've been making for the last two test matches. So let me go across to Jayant Lakheda as well, who's been patiently listening into the discussion thus far. You know, Jayant, let's talk about the Indian bowling lineup and how well the Indian bowlers have done. You know, right from the Australian series, we've seen R. Ashwin chipping in, doing his very best. He's continued through the series with England as well. And Akshar Patel has really been a revelation in the last couple of matches. फ्रैंक जैसा आज की बात शुरू हुई, मदन जी ने जैसा बताया कि इंग्लैंड हैज डन लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सारी कागजी कार्रवाई वो करके आए हैं, बट एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही हम अपने यंग प्लेयर्स को देखते हैं, अगर हम बात करें जैसे आपने बताया अक्षर पटेल की ही, ऐसा लगता नहीं है कि इज अ डेब्यूटेंट प्लेयर, लगता है इज लाइक प्रीटी एक्सपीरियंस्ड, अपनी लोकल क्रिकेट में ही वो इतना सीख गए हैं कि इट्स नेक्स्ट लेवल इंटरनेशनल प्लेयर। और जिस तरीके से एक सेटल काम वे में इंडियन टीम के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर हम वहीं पे देखें कि इंग्लैंड ने बहुत तरीके से बहुत स्ट्रैटेजिकली टैक्टिकली सोचा, चेंजेस करे, इंडियन टीम वहीं पे सीधा इम्प्लीमेंटेशंस में रियल टाइम चेंजेस में, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस में इतनी ज्यादा आगे रही है। और ये सिर्फ ना ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ की बात नहीं कर रहा मैं, यंग प्लेयर्स जैसे कि अक्षर पटेल हैं, 4 विकेट्स और ऐड की इन्होंने, इतना जबरदस्त तरीके से प्लांटेड रहते हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, वो चीज देखने वाली है बहुत ज्यादा। और यही चीज शायद इंग्लैंड को भी सीखनी चाहिए इंडिया से कि जिस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ना कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, इतने यंग प्लेयर्स है इंडियन टीम के द्वारा, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग की वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो गेम चेंजिंग है। Absolutely. And Jayant, you know, if I could just add here, you know, it also talks a lot about the leadership, doesn't it? Because, you know, these youngsters are being helped, are being, you know, coached well, are being led very well as well. That's why they can go ahead and do this. Exactly. Even if you say in the last match, Joe Root was playing the entire game. It was like just, you can say England versus Joe Root versus India, and Joe Root was trying to be everywhere in the match for England. But यहाँ पे आप अगर देखिए यंग प्लेयर को भी देखेंगे किस तरीके से मतलब वो टीम लीड कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो डेब्यूटेंट प्लेयर है। ऐसा लगता है कि ही इज कम्पीटिंग विद जो रूट, किसी और तीसरे चौथे प्लेयर से कंपटीशन ही नहीं चल रहा, हर प्लेयर टॉप रैंक 1 के लिए ही कम्पीट कर रहा है इंडिया में। सो दैट इज रियली कॉम्पिटिटिव इन इंडिया। और ये चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और हर टीम को इंडिया से सीखनी चाहिए कि बस स्ट्रैटेजी, टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स ही नहीं, किस तरीके से रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन इंडियन टीम के द्वारा हो रहा है, वो दैट इज एक्सट्रीमली अमेजिंग। एब्सोल्युटली। मदन जी, थर्ड टेस्ट के बाद काफी कुछ चर्चा हुआ पिच पे। You know, everyone was talking about the pitch, unplayable conditions. They talked about how it was, you know, difficult to play here, but no complaints on the fourth test. I mean, the pitch looks great. Pitch looks great, लेकिन विकेट्स तो 10 गिरे हैं इंग्लैंड के। नहीं, पिच में तो जो पहली जो थर्ड टेस्ट की विकेट थी वो टर्निंग ट्रैक जरूर था। मैं नहीं कहूंगा कि टर्निंग ट्रैक नहीं था, लेकिन जब हम न्यूजीलैंड में खेलने जाते हैं तो कंडीशंस तो वैसे ही होती। लेट्स नॉट कंपेयर इट, नाउ वी टॉक अबाउट दिस थर्ड टेस्ट मैच। जो मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात खत्म नहीं की
क्योंकि विकेट टर्निंग था, डिफिकल्ट विकेट था, बट यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, Absolutely. दैट्स व्हाट आई मीन। Absolutely. क्योंकि उस पे आपको खेलना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पिंक बॉल से गेंद ज़्यादा टर्न करता हो, बट कल वाली विकेट्स जो होती है वो बिल्कुल टिपिकल इंडियन विकेट्स, यहाँ पे आप मैच कर सकते थे। बट मैंने कहा ना कि जैसे कि उन्होंने सेम मिस्टेक्स किए हैं जो उन्होंने पहले करे। Phil, Jayant, if I can come to you, let's talk about day two now. We've focused quite a bit on day one. India, of course, has lost that one wicket of opener Shubman Gill. Of course, that was a wicket that we lost early on. But since then, we've seen a steady partnership being built between Pujara and Sharma, of course. So, what can we expect going into day two? Frank, India has got a really fine and stable batting lineup. So we have like the top ranking batsmen in our teams, and it's going to like because we are obviously dominating in the game and in the series as well. We have won the physical implementations in the game. We have won the mental game. Psychologically, England बहुत ज़्यादा pressure में है. So it's going to be extremely positive side for India, and I'm pretty sure that India is going to win this match as well because we are on a very you can say better side. We are not only better in the way of batting or bowling. We are on the better side of our psychological order as well. We are going to implement it pretty well. We got a really nice batting lineup. एंड एट दिस टाइम हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन पे भी हैं जो रूट मैच मतलब बैटिंग करने के बाद भी दे हैव नॉट लाइक प्लेड इट रियली वेल एंड यहाँ से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके वी आर गोइंग टू टेक इट टुवर्ड्स विन Absolutely. Chaliye. So since we are talking about the Indian batting lineup, let's look at the opening pair of Gill and Rohit Sharma and see how they have done in this. Okay, we look at the Indian openers first and look at how the Indian openers have fared really over the last few matches. Shubman Gill has played in 7 matches, scored 378 runs at an average of little over 34. He has scored 350s as well. Mayank Agarwal has been used in 14 matches, scored 1,052 runs. He's averaging about close to 46 and also scored 450s and 300s. KL Rahul, most experienced of the openers on this particular list, 36 matches, 2,006 runs, averaging 34.5, 1150s and 500s. And then Prithvi Shaw has been used in 5 matches as well, where he has scored 339 runs at an average of 42.37, 1 century and 2 half centuries. We'll look at the opening pair that has been used in the England series. First test match, of course, Gill and Rohit as an opening pair scored 19 in the first innings and 25 in the second innings. The second test, not, and 42 in the second innings. And also, if you look at the third test, 33 runs were scored by both these openers in their opening partnership stand. And the second innings was, of course, that didn't happen. So that was that. And in the fourth test as well, we've seen that the opening pair has not done too well. But Madan ji, opening pair के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? काफी सारे openers try किए हैं हमने last 2 years में. अब we are going with Gill and Rohit Sharma. So how would you look at them as an opening pair? I see it's a right combination because why the Gill is very talented. That's whatever way I've seen him in Australia, the way he batted, the way he's shown the confidence. But yeah, sometimes you struggle. He's struggling. Chaliye, on that, from that lighter moment, let's move on to some serious talk about the match itself. Madan ji, England bowlers के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं. They have, I think they had a long day. Agar if they don't get the wickets, teen bowler is, like international cricket mein is very, very difficult, So you get tired, the heat and everything, your fingers get tired. How long you can keep on, Jimmy Anderson, कितना स्पेल करेगा 5-6 ओवर का, then we have to give him break. हाँ, आप बीच में आप जो रूट को कह सकते हैं, अभी उसने लास्ट मैच में विकेट्स निकाले, पर ये विकेट लग है, ये टोटल अलग विकेट है, इसमें गेंद टर्न कर रहा है, बस स्लो टर्न कर रहा है. So international teams never plays with the 3 क्योंकि bowlers wins you the matches. True. Definitely, because I know कि बैट्समैन रन तो बनाते हैं, पर विकेट जो 20 विकेट्स निकालने हैं, उसके लिए 3 बॉलर मैं समझता हूँ कि काफी शॉर्ट है. काफी मुश्किल भी होगा उनके लिए. हम अगर सेट हो गए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा. अगर विकेट मिलते जाए तो फिर इतनी थकावट भी नहीं होती. बिल्कुल, बिल्कुल. And Jayant, if I can come across to you as well, since we're talking about the English bowlers, whom should we watch out for on day 2 and the first session especially?
I would say here, Frankie, we should not watch out for the England bowlers because Indian batsmen are going to dominate this match now. Psychologically, England team काफी ज़्यादा बुरी स्थिति में है and we are going to dominate the entire match. ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ही बड़ा नहीं मारेगा और they going to like take away the entire game. Obviously, this is sport, कुछ भी हो सकता है एक हैट्रिक हो जाए मैच शुरू होते ही लेकिन it's going to be dominated by the Indian batsmen. It's going to be a very pretty long day for the bowling side for England, and that's all I want to say on it. लॉन्ग डे की जो बात हो रही है मदन जी, लेट्स नॉट फॉरगेट आवर बैटिंग ऑर्डर इज आल्सो वेरी डीप. वॉशिंगटन सुंदर कमिंग इन एट 9, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप भी है हमारी, तो यू नो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर. Definitely, because they are all in form. They are all scored runs. You know, but Sundar has scored around 80 odd runs, you know, when he played the first one. पहला टेस्ट मैच खेला था इंडिया में, तो वो तो है ही है. बट ये है कि you know you need a partnership. You know, once you started the partnership, you know, then it becomes very difficult for them. You know, for the English bowlers. But definitely we have Virat Kohli. You know, they're all capable. Ajinkya Rahane and Ashwin, who already has scored runs. You know, a lot of runs. So we have a long batting lineup. It depends, you know, like that's why I said कि एक घंटा निकल गया, 2 घंटे लंच टाइम निकल गया, फिर पता क्या होता है, then you know like England also start thinking what to do next. So they will be looking 2 hours some break कि 2-3 विकेट मिल जाएं तो उसमें they might come back in the match, you know. But very difficult. But cricket is, you know, पता ही है आपको, नीचे तो हम predict कुछ करते हैं, होता कुछ और है. So I think balanced prediction is better. Don't take anything for granted, because on your day anything can happen in cricket, or anything can't happen also. Can't happen. Yeah, we've seen some few things now for the last 2-3 months. You know, काफी चीजें ऐसी हुई हैं जब हम predict करते हैं, वो prediction किसी की भी गलत हो सकती है. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर कम बैक होना, फिर हिस्टोरिक सीरीज जीतना, ये सब चीजें तो इसी के अंडर कंट्रोल में आ जाती है ना, कुछ भी हो सकता है. एब्सोल्युटली. चलिए मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. हम वापस आते हैं लंच ब्रेक पे. Okay, definitely. To continue talking about the match and how India has done in the first session of day 2's play. Irfan ji, thank you so much as well. And Jayant, thank you for joining us this morning and taking us through all those updates. We'll slip into a very short break now, but on the other side, we'll have cricket gupshup. So don't go anywhere. Stay tuned to DD Sports. Hello and a very warm welcome to DD Sports. You're watching Cricket Live. I'm Frank Rausen Pereira and we are analysing the game's play. The first session is up. It's lunchtime as far as the 4th and final test between India and England is concerned. Right at the stroke of lunch, there was a blow to the Indian cricket team where we lost Ajinkya Rahane, who was batting very well. We'll take a look first at the batting card of the first session of play of the second day. Of course, this is the scorecard that we see on our screens. India losing 3 wickets in the first session of play and scoring 56 runs. We'll also take a look at the bowling card too, where 3 bowlers, that is Anderson, Stokes and Leach, picked up a wicket each in this session. Joining me here in our studio on DD Sports is Madan Lal, former Indian cricketer and World Cup winner as well. Also with us, Mohammad Irfan, cartoonist, and Jayant Lakheda as well, sports expert, will be with us on the program. Madanji, let me start with you first. Big blow to the Indian cricket team just on the stroke of lunch, losing the wicket of Ajinkya Rahane, who was batting very well. He seemed like he was in very good nick. He was scoring at a good pace as well, but unfortunate to have lost his wicket. Yeah, definitely. I think England is back in the game. मैंने कहा था कि लंच तक थोड़ा क्रूशल टाइम रहेगा, क्योंकि ऐसी विकेट है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है. तो England, I think, pick up the bowler is Ben Stokes and Jimmy Anderson. I think on this wicket, if you bowl like this, I think they've done the maximum damage. And I think after lunch also, they will try to do the same, क्योंकि काफ़ी reverse swing हो रहा है.
तो उसमें थोड़ा सा ना बैट्समैन के मन में थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट हो रहा है। एक तो लो बाउंस है, शॉट्स खेलना बड़ा मुश्किल है। यही एक आई थिंक 45 मिनट थे जहाँ पे 40 रन बने हैं। तो अगर पहले देखें तो पहले सेशन में 1 घंटे में, सवा घंटे में कोई रन नहीं बना ज़्यादा। 24 पे कल एक आउट था, उसके मेरे ख्याल अगले घंटे में हमने आज सुबह शुरू किया तो हमने सिर्फ 42 रन बनाए थे और हमारा एक खिलाड़ी पुजारा आउट हुआ था LBW। तो ये क्रूशल जो था टाइम, वो मैं समझता हूँ इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया है। आपने सुबह के सेशन में ही बताया था कि अगले 2 घंटे जो हैं बहुत ही क्रूशियल होंगे। हाँ, क्रूशियल और होंगे। क्रूशियल तो थे। हाँ थे, और उसके इसलिए मैंने कहा था कि क्योंकि जब बैट्समैन आता है फिर सेट होता है तो फिर जाके रन बनने शुरू होते हैं। पर विकेट ऐसा है ना जहाँ पे आप वो नहीं, बाउंस नहीं है शॉट्स लगाने के लिए। द ओनली वन शॉट्स व्हिच यू कैन यादर स्वीप और यू कैन हिट स्ट्रेट, दैट इज ओनली शॉट्स यू कैन सी द बैट्समैन प्लेइंग। 1-2 शॉट्स खेले रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ एक चौका भी मारा था, बट उन्होंने ना कंट्रोल किया हुआ है इंग्लैंड वालों ने। 12 ओवर उसने किए हैं, बेन स्टोक ने 20 रन दिए हैं, जिमी एंडरसन काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सिंग करा। तो नाउ it's I think next 2 hours will be the more difficult for Indians. So next 2 hours will be the most crucial aspect for of this Indian test match. for the test match also. So Jayant, let me come across to you now. Let's talk about Virat Kohli. If we have the graphic, we can play that out as well. He's been out on a duck or zero 12 times in his career, and he seemed to have a tough time today as well. Is it just a short dip in form or something that he needs to be concerned about, Jayant? सिर्फ विराट कोहली ही नहीं या किसी भी बैट्समैन ने जिसने स्टार्ट किया, अगर आज के बारे में देखेंगे तो हर बैट्समैन एक माइंडसेट से आया था कि मेरे को बस किसी भी तरीके से टिक जाना है, रन अपने आप बन जाएंगे। इनिशियली विराट कोहली भी उसी माइंडसेट से आए थे, बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव शॉट्स खेले उन्होंने इनिशियली, और उसे लग रहा था कि वो ऐसा नहीं है कि पहले से सोच के आए हैं कि आऊंगा दूसरी तीसरी बॉल पे छक्का मारूंगा और एक सेंचुरी होगी और हम जीत जाएंगे। वो बहुत ज्यादा सोच के आए थे कि आज मुझे सेटल होके खेलना है, 0 पे नहीं, कम रन पे नहीं, एटलीस्ट हाफ सेंचुरी या सेंचुरी पे मुझे जाना है, अच्छी पार्टनरशिप बनानी है, टीम को सेटल डाउन कर देना है। रोहित शर्मा की तरह वो भी चाह रहे थे कि दूसरे एंड पे मैं भी सेटल हो जाऊं, हम लोग भले ही सिंगल्स लें, छोटे रन लें, लेकिन हम सेटल हों, और अगर हम सेटल रहे तो रन तो अपने आप बन जाएंगे। लेकिन जो स्टोक की बॉल आई है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड बॉल है। इस तरीके का बाउंस जो अचानक से बॉल को देखने को मिला, आई थिंक ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही बुरा खेला, लेकिन बॉल इतनी जबरदस्त थी कि शायद उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं उस पर। बिल्कुल। मदन जी, विराट कोहली का अगर मतलब गेम प्ले देखते हैं तो काफी खुल के खेलते हैं। He is not a very defensive player by nature. He likes to rotate the strike. He likes to get onto the other end of the pitch. लेकिन आज बहुत ही थोड़ा ज्यादा ही डिफेंसिव लगे मुझे। क्या आप सोचते हैं कि he should just play his game? नहीं, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द विकेट यू हैव टू प्ले, एंड उनको इतना वक्त मिला भी नहीं वहाँ पे सेटल होने का, क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुए वो एक अनएक्सपेक्टेड बॉल कहते हैं ऐसी विकेट के ऊपर, एंड उसका बल्ला भी हैंग किया है। ऐसे ही नहीं है कि उसने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऐसे बॉल जब ऐसी विकेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है कि बाउंसी विकेट पे अगर ये बॉल गेंद होता ना, वो शायद बल्ले का ड्रॉप कर देता नीचे। उसने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा आएगा। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, बट जब भी वो गेंद आया उसने थोड़ा सा उसको, और वो प्रीवियस बॉल जो था वो काफी लो था। हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड कि ऐसी विकेटों के ऊपर ना बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। Absolutely. Jayant, let me come across to you now. चलिए बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा now is at the crease. He spent quite some time at the crease, and he seems like the player to watch out for as far as India is concerned, and he has to do well if we have to surpass the first innings score of England. फ्रैंक, रोहित एक्चुअली वही चीज कर रहे हैं जो शायद हर कोई दूसरा बैट्समैन उनके साथ रह के करना चाह रहा है। वो बस रह के खड़े रहना चाहते हैं पूरे दिन। उन्हें पता है कि लूज बॉल्स आएंगी, शॉट्स तो वो ले ही लेंगे, रन्स तो उन्होंने बना ही लेने हैं, बट समहाउ वी नीड टू। चलिए, we seem to have lost the line there with Jayant. We'll go back to him in just a bit. Madan ji, Rohit Sharma, how important is he for Team India? I think he's very important because he's the man in form. Most of the run he has scored, like first, second, third, जो भी है, but definitely he's a key man now. And at the same time, the rest of the batsmen, I think they should
make sure that they should hang around with him. And whenever the scoring opportunity comes, you score. Otherwise, मुश्किलें बढ़ती चले जाएंगी. क्योंकि क्या रहता है कि आपको जहां आपको रन मिले निकालने पड़ेंगे. स्कोर बोर्ड जब चलेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा. बिल्कुल. नहीं तो स्कोर बोर्ड वहीं चलता रहा और विकेट्स निकलते चले गए, फिर देन इंग्लैंड विल पुश यू, यू नो, देन दे विल गेट द फील, यू नो. तो ये गेम तो स्पोर्ट्स तो चलती ऐसी है ना कि I read you, you reading me, and how I'm going to go do it against you. So that's the beauty of the test matches. It's a chess game as chess well. Game, definitely. क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब जैसे अब विकेट मिला, अब 205 रन भी बड़े लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं. ऐसे कल लग रहा था यार 205, तो विकेट में कुछ नहीं है, सारा ठीक रहेगा, तो हम 100-125 रन ऊपर बना लेंगे. हो सकता है कि मैच तीसरा दिन और चौथे दिन खत्म. अब स्टोरी डिफरेंट. So, you know, ऐसे ये तो that's why I said कि in the beginning of the show कि predict करना बड़ा मुश्किल है. Crucial stages अब आए हैं. बिल्कुल, and that's the beauty of sports. That's right. Yeah, no. चलिए जयंत, वापस लौटते हैं आपके पास. You rejoined us on the program. Go ahead. You were talking about Rohit Sharma. Yeah, so रोहित शर्मा इनिशियली जैसा कोई और प्लेयर चाह रहा है पूरे मैच में खेलने के लिए, he is trying to be settled. अच्छी चीज ये है कि कोई और नहीं हो पाया, लेकिन he was successful in getting himself comfortable with the team and with the pitch. बहुत ऑब्जर्व करके खेल रहे हैं. बस उनका यही मोटिव है कि इस एंड से कोई विकेट जानी नहीं चाहिए, रन्स तो मैं बना ही लूंगा. और 1 या 2 विकेट्स के चक्कर में इंग्लैंड है, अगर 1-2 विकेट्स और गिर गई तो प्रेशर ऑब्वियसली इंडिया पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है. रोहित शर्मा उसी को अनसक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. बस हमें ऑन दी अदर एंड देखना है कि कोई भी प्लेयर जो ऑन दी अदर साइड हो वो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर पाए दूसरे एंड पे, सो दैट अगर वो रनिंग ओवर द विकेट भी बहुत ज्यादा करते हैं, अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट रन भी लेते हैं, 1-2 सिंगल्स भी ले रहे हैं, तो उनको हेल्प मिलती रहे, इंग्लैंड पे प्रेशर बनता रहे. जैसे ही मैच टायरिंग साइड पे जाएगा, आई थिंक बॉलर्स भी अचानक से बहुत ज्यादा बाउंस नहीं डाल पाएंगे. देन वहां पे जो सेटल्ड बैट्समैन होंगे उनको लूज बॉल्स मिलेंगी और वो लोग रन जरूर खेलेंगे. ये हर किसी टेस्ट मैच में होता है कि इट्स बेटर टू सेटल योरसेल्फ एंड जस्ट वेट फॉर द लूज बॉल. एब्सोल्युटली. तो मदन जी, ये लास्ट रिकग्नाइज्ड बैटिंग पेयर होगा. हालांकि अश्विन और अक्षर पटेल ने काफी अच्छा खेला है, दे आर बोथ इन गुड फॉर्म, बट लास्ट रिकग्नाइज्ड बैटिंग पेयर ऑफ पंत एंड रोहित शर्मा. हाउ मच ऑफ प्रेशर डू यू थिंक विल बी ऑन द यंग शोल्डर्स ऑफ पंत? देखिए पंत जो है उसके ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा. अब क्या है कि ये तो इधर आपको बेल आउट कराएगा निकालेगा और यहाँ फिर आपको फंसाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इतना लंबा रुक के खेलने वाला प्लेयर नहीं है. ही विल कीप ऑन प्लेइंग शॉट्स विच इज मे बी गुड फॉर द टीम, बट इन दैट कोर्स ही माइट गेट आउट आल्सो, क्योंकि अभी थिंग्स आर नॉट इजी देयर. बिल्कुल. तो Jayant, let me just come across to you with, let me continue the discussion that I was having with Madan ji about, you know, first class cricket and how important first class cricket is too at the end of the day, because that's where we see real players coming through and then finally making it on the big stage. फ्रैंक, अभी हम लर्निंग की बात कर रहे थे, तो आई थिंक यंग प्लेयर्स के लिए तो ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट हो गया है विराट कोहली के द्वारा कि द लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम और बॉडी पे काम किया है. इनिशियली जब वो आए थे तो ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े प्लेयर्स निकलेंगे, बट जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिजिक, अपना कमर्शियल एंगल, अपना गेम, अपने स्किल्स, अपने शॉट सिलेक्शंस पे काम किया. हर एक यंग प्लेयर किसी भी लेवल पे उन्हें देखता है, ना कि इंडिया में, आई थिंक ग्लोबली हर एक क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली को जरूर देखता है. नाउ इंडिया में तो ऑलमोस्ट अब जब हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं वो सब बेंचमार्क्स हैं कि वी शुड वर्क द वे दे आर डूइंग इट, एंड हर एक जगह पे दे आर सेटिंग एग्जांपल्स. एंड इवन अगर हम सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया में तो इफ यू से विराट कोहली इज नॉट ओनली मोटिवेटिंग पीपल फ्रॉम क्रिकेट, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स आर आल्सो गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम हिम कि किस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर काम किया है. ही क्रिएटेड हिमसेल्फ एज अ लाइक अ फाइन प्रोडक्ट, और वो चीज बहुत ज्यादा सीखने को मिल रही है यंग प्लेयर्स को और कोई भी बडिंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को. Absolutely, absolutely. Or Jayant, your closing comments on this particular aspect? और जैसे ही वो होती है, इंडिया इज गोइंग टू बी इन अ फाइन सिचुएशन. अगर वो नहीं होता है तो हाँ, वहाँ पे चैलेंजेस इंडियन टीम को आ सकते हैं. तो लेट्स सी कि नेक्स्ट पार्टनरशिप कितनी बड़ी बनती है और कब तक बनती है.
Absolutely. Partnerships are the key, Madan ji, because विकेट नहीं partnerships गिरेंगे, are the विकेट ones नहीं that- गिरेंगे तो पार्टनरशिप अपने आप ही हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, thank you so much, Madan Lal and Mohammad Irfan, Jayant as well for joining me on the program and sharing your views. We'll slip into a short break. On the other side, Cricket Gupshup will continue. Do stay tuned. आप समझ सकते हैं। अभी आप मत भूलिए भुवनेश्वर को परफॉर्म करके वापस आना है, वो भी पाइपलाइन में है। और एक सबसे बड़ा नाम मोहम्मद मोहम्मद शमी को बुमराह फिट है, वो इतने- बुमराह को वापस आना है, वो रेस्ट के लिए गए। तो जब आपके पास इतना बड़ा लॉट हो जाए और आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, लेकिन अभी तक जो प्लस पॉइंट हुआ है, जिस पर दाव खेला है टीम मैनेजमेंट ने, वो खरे साबित हुए हैं। ये इसको कहते हैं। फिर वो उससे क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो उतना ही अच्छा हो जाता है, वही दिख रहा है मैदान पर। और आगे आप सेलेक्टर भी रहे हैं। जी, जी। आगे जाके सेलेक्टर्स के लिए बहुत ही कठिन टास्क होगा। नहीं, अच्छी बात भी है। देखिए, आपको विकल्प कई बार ढूंढने पड़ते हैं। जब आपको विकल्प कोशिश करते हैं, ढूंढने पे भी नहीं मिलता, फिर आपको मायूसी होती है। यहाँ पर तो आपकी बिल्कुल लिस्ट में है, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस, देखिए, चोट किसी को भी लग सकती है। जैसे मोहम्मद शमी की आपने बात की, वो फिट होके आएंगे तो टीम में आ जाएंगे। तो ऐसे ही रविंद्र जडेजा ने अभी आना है टीम के अंदर, बिल्कुल। वो भी चोटिल हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर वो लिस्ट में जब होता है तो फिर चिंता नहीं रहती कि देखिए कोई परवाह नहीं, चोट लग गई, अक्षर पटेल आ गए, वाशिंगटन सुंदर हैं। जब आपके पास विकल्प अच्छे हो जाए और ऐसे ही तेज़ गेंदबाजी में, तो फिर आपको एक जस्टिफिकेशन हो जाती है कि अब हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है एक ऐसा पूल है जिसके अंदर से जब चाहें हम किसी को खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी चलते हैं जयंत लखेड़ा के साथ, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ of the Indian team. So the team looks in a very, very happy place right now. Overall, as far as bowling is concerned, we've got two spinners as well waiting in the ranks in Chahal and Kuldeep Yadav, at least five fast bowlers just waiting to come back into the Indian team, and that many batsmen as well. So a good place to be as far as the selectors and the team is concerned. Frank, if we say in today's match, we learned that we really got a really nice pool of talent in our team. As soon as Rohit Sharma went out, it was like a very dicey situation for us whether we're going to be back again leading the game or not. And that was the time we got to know कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कभी भी किसी भी टाइम पे गेम को चेंज कर सकते हैं। 6-7 विकेट के बाद जैसे सुंदर और पंत ने पूरा मैच संभाल के रखा, वो चीज तो ऐसे लग रही थी जैसे ओपनिंग बैट्समैन जाके पूरा मैच संभाल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये 6th और 7th विकेट डाउन लोग हैं और ये लोग मैच खेल रहे हैं, ये लोग मैच संभाल रहे हैं। ये किस कॉन्फिडेंस से उन्होंने शॉट्स लगाए हैं। ऋषभ पंत ने जब एंडरसन ने अपना करियर शुरू किया, ही वाज जस्ट 4, एंड जिस तरीके से वो लोग शॉट्स लगा रहे हैं, शॉट सिलेक्शन हो गए या किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो देख के तो एग्जैक्टली पता चलता है हमें कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, आई थिंक इवन द 11th guy means something to the team and he can really make a dent to the opposition. बिल्कुल। युवा की जो बात कर रहे हैं यशपाल जी, ये ऐसा क्या है इनमें कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो खेल रहे हैं, मतलब 20-22 साल में इतना मैच्योरिटी के साथ खेल रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। जैसे कि ऋषभ पंत ने एंडरसन को रिवर्स फ्लिक मार के चौका जो मारा था, वो कमाल किया है, कमाल किया बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की, ये रातों रात नहीं होता। देखिए, ये इसमें पर्दे के पीछे कुछ और लोगों का भी रोल होता है। मुझे खुशी होगी, मैं आपसे ये चर्चा में करूँगा, एक ऐसा इंसान है जिसने कभी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन वो आज मेहनत पे लगा हुआ है ग्रास रूट से, और जो युवा खिलाड़ी हैं उनको और अच्छा बनाने की। उसका नाम है राहुल द्रविड़। बिल्कुल। वो NCA में जैसे भी कुछ होता है वहाँ आप जाके देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 साल में उन्होंने जूनियर क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया है और हर स्टेट में जाके उन्होंने वो टैलेंट ढूंढा है। और देखिए, यही खुशी की बात होती है कि जिसने अपने देश के लिए अच्छा किया हो, और राहुल ने तो कमाल किया है, और उसको वापसी कैसे देना। देखिए, उन्होंने गैप नहीं रखा,
जैसे ही उनकी जिम्मेदारी दी गई वो अपने काम पे लग गए, और यही नतीजा है कि ये जितने जूनियर क्रिकेट प्लेयर्स आप देख रहे हैं, ये जो टीम में भी खेल रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है, एक परिवार की तरह है कि हर एक का रोल कहीं ना कहीं चलता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक चेन बनी हुई है, जो बीसीसीआई को भी इसमें क्रेडिट जाना चाहिए कि जिसका काम उसी को साजे। तो उन्होंने खिलाड़ियों के हाथ में दे दिया कि देखिए ये काम आपका है, अब हमें रिजल्ट चाहिए। देखिए हेड कोच रवि शास्त्री हैं, यहाँ राहुल द्रविड़ को बना दिया है, तो अनिल कुंबले भी इससे पहले कोच थे, तो अब अनिल कुंबले टेक्निकल कमेटी में है आईसीसी की जी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब खिलाड़ी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया होता है, जब वो समझाते हैं युवा खिलाड़ियों को, तो यकीनन उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। वही आपको मैदान पे दिख रही है। Absolutely. Credit must be given where it is due. And here we would like to call out the former Indian captain and cricketer Rahul Dravid as well for ensuring he's done a splendid and fabulous job in nurturing all the raw talent and bringing them to this particular stage and ensuring that they have a stable head on their shoulders and playing with the kind of confidence that they have been over the last couple of years in the middle. All right, Jayant, final comments from you before we wind up the program. फ्रैंक, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जैसे ही रोहित आउट हुए। मैं कहूँगा बल्कि आज अच्छा हुआ कि ऐसी सिचुएशंस आई और हमें पता चला कि वी गॉट लाइक रियली नाइस बैटिंग ऑर्डर, और ऑलमोस्ट हर एक बैट्समैन पे हम बिलीव कर सकते हैं कि ही कैन चेंज द इंटायर गेम। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिली थी आज कि आई थिंक इंग्लैंड के बॉलर्स थक गए थे 3 या 4 घंटे बाद ही मैच के, और वहां पे हम लोगों को ओवरकम करने का बहुत अच्छा चांस मिला। सो लेट्स सी कि क्या कल भी वो लोग उतना ही थके रहेंगे। अगर थके रहेंगे तो वी कैन इजीली लीड द गेम, but hopefully we need to see that whether these English players can recover physically as well for tomorrow's match. Right. Jayant, thank you so much for joining us through the course of the day on Cricket Live and sharing your views and thoughts on day 2 of the 4th test. यशपाल जी, जाते जाते मुझे लगता है कि अगर कल और ये इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में ये चौथे दिन मैच ले जाती है, तो ये बहुत बड़ा कारनामा कर लेगी। पहले दिन पहली पिच पर जो अच्छी पिच थी उस पर नहीं ये बना पाए, अब तो जो स्पिनर्स कमाल करेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ से वापसी मेरे हिसाब से करिश्मा भी नहीं होगा। 4th इनिंग्स का बैटिंग देखेंगे कि नहीं? देखिए वो करेंगे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं है ऐसी पिचेस पर खेलने की। जी। तो जब इंडियन बैट्समैन जो बचपन से ऐसी पिचेस पर खेलते आए हैं, उनको तकलीफ हो रही है, और जब इतना जोर से अब टर्न हो रहा है, तो वो कैसे झेल पाएंगे अक्षर पटेल, आर अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को। तो मुझे तो ये करिश्मा भी नहीं होता लगता। अब तो ये ठीक है, वो टाइम पास करेंगे कि कोशिश है कि हमारे अपने रन बन जाएं, थोड़ी सी अपने आप को बचा लें, पर मुझे बहुत बड़ी एक चैलेंज लगता है इंग्लैंड बैटिंग के सामने कि ये अपने आप को बचा पाएंगे। जी, चलिए, थैंक यू सो मच यशपाल जी क्रिकेट लाइव पे जुड़ने के लिए, और इरफान खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। That's all the time we have in this edition of Cricket Live. Thank you all for staying tuned to DD Sports right through the course of the day. We'll be back again at 9 a.m. with Cricket Live, where we will be covering day 3 of the 4th test match between India and England. That's it for now. See you again next time.